In the city of Banaras, the Ganga Aarti takes place on Sitla and Dashashwamedh Ghats. While people imagine it to be an age old tradition, it actually has a relatively recent origin. It began back in the year 1984 as an attempt to boost tourism organized by the Ganga Seva Nidhi. The ritual of offering prayers, held daily at dusk, ensures that pilgrims spend more time on the ghats. The Aarti attracts hundreds of local people and tourists. This supports the livelihood of over 100 families of vendors, entrepreneurs, and small businessmen directly or indirectly involved in the Aarti, as well as cleaning crews maintaining the space through the day. On Dev Diwali and Ganga Janam Divas, the number of spectators runs into tens of thousands. गंगा आरती जहाँ तक भारतवर्ष में सबसे प्राचीन हरिद्वार में हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में काशी में प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे जब से हमारे परिवार पिताश्री के द्वारा ये गंगा आरती चालू हुई, ये निरंतर लोगों को मन की आत्मा शांति प्रदान कर रही है और देश विदेश दुनिया के लोग बरबस यहाँ इस गंगा आरती को देखने के लिए और काशी घूमने के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से ये गंगा आरती विश्व के लोगों के मन में के अंतर आत्मा को शांति प्रदान करती है। तो जल ही जीवन है, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो। तो हर मनुष्यों का पहला फर्ज होता है कि जल को स्वच्छ करे। हमारे यहाँ पुराना कहावत है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। क्यों कहा गया है? पानी जब स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ पानी पिएंगे तभी हम अंतरात्मा से और स्वस्थ और हुष्पुष्ट जिएंगे। तो अगर बीमार रहना है तो माँ गंगा में आप कूड़ा कचरा डालिए, और स्वस्थ रहना है तो हर नदियों को, हर जल को शुद्ध करिए। Every year, the steps are reclaimed from the silt collected during the monsoon, bringing the Aarti back to the ghats. Water drawn from the river is used to wash off the silt back into the river to flow away. इधर क्या करवाते हैं जी? हम यहाँ पर माला फूल की सफाई करवाते हैं, गंगा जी में से निकलवाते हैं जी। जो गंदे कपड़ा रहता है छोड़ के जाते हैं यात्री लोग जी, उसको निकलवा के सफाई करवाते हैं। झाड़ और जो यहाँ पर यात्री गंदगी कूड़ा करकट जो होता है वो तो नित्य दिन होता है दिन जी। भर। तो ये कितने लोग इस घाट को साफ करने में पूरा इस घाट को सफा करने में 5 लोग लगते हैं। और जी दिन में कितनी बार करना पड़ता है? दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है। पूरा टाइम चालू ही होता है? पूरा टाइम चालू रहता है। जब भी आप आएंगे आपको नित्य दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको सफाई। और ये सरकारी नगर निगम का है ये हिस्सा? ये नमामि गंगे का है। नमामि गंगे क्या है? ये प्रोजेक्ट का नाम है, मोदी जी ने दिया है। मतलब सरकार की तरफ से ठेके पर दिया गया काम को। ये कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर। Nothing but silt and sand may go into the river. The ghats are carefully swept before being washed to ensure that. The ghats are washed 3 times a week in winters and every day in the summers. After the ghat is swept, in the hours preceding the aarti, all the activities appear to be a part of the preparation for it. The preparations begin as early as 3 p.m. when the takhts, carpets, diyas, dhoops and other articles used in the puja are brought out of the storage units.
10 men in their late teens and early 20s belonging to the Dubey, Sahani and Pandey families are employed by the Seva Nidhi to set up the platforms and make seating arrangements. The families have been living in houses surrounding the ghat for 12 to 13 generations. The head of the Seva Nigam, Dubeji, also gives them responsibility of coordinating with the vendors in the market to supply samagri such as diya threads, camphor, ghee, flowers and fruits. The vendors provide a monthly bill for the goods and materials supplied, avoiding daily transactions. People who live nearby volunteer to help on special occasions since the preparations then happen on a much larger scale. They see volunteering at the Seva Nidhi as a Shram Dan. Many local people and tourists come to the pujaris at the ghats to seek advice and perform rituals for themselves and their families. The donations they make add to the pujari's livelihood. जयफरिया पीला वाला गेंदा गुदावदी जलहौदी The vendors who sell puja samagri in particular benefit from the aarti since people buy diyas, flowers and garlands in large quantities to offer to Ganga Mata during the aarti. हम लोग जो भी अपने काशी के लोग हैं इन्हीं के माध्यम से खा रहे हैं कमा रहे हैं जी लोग अपने पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं स्नान करते हैं पूजा के माध्यम से दर्शन के माध्यम से आते हैं स्नान करके कुछ फूल माला लेके दर्शन पूजा करते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य है कि हम यहाँ मेरे काशी में मेरा जन्म हुआ है हम यहाँ फूल माला बेच रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इनके माध्यम से हम कमा खा रहे हैं जी हमारे घर पर इनकी वजह चल रहा है। Because of the aarti, tourists are seen on the ghat all day. This provides business for photographers, masseurs, small vendors and hawkers who sell toys, malas, shawls, saris, flutes, among many others. Food and beverages like chana chor, candy floss and lemon tea are also sold. A major sector that benefits from the aarti is boating. There are as many people who view the aarti from the river as there are from the ghats. When the aarti begins, boats gather around the ghat to give spectators an enthralling view. आप बता रहे थे कि कैसे आप गंगा आरती प्रभावित करती है आपके बोट के बिजनेस को, कुछ बताना चाहेंगे? उसके लिए सर कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे वो घाट भी घूम लेते हैं और हम लोग वहाँ पे लगा के बीच गंगा आरती के ठीक सामने उनको बैठा के आरती दिखा देते हैं कि सामने फेस टू फेस आरती देख लेते हैं। उनको थोड़ा शांति भी मिल जाता है जो इस साइड में नहीं मिल पाता है। जो इधर के लोकल रहते हैं तो आप कभी भी आके देख लेते हैं और जो बाहरी होते हैं ना वो आके ही थोड़ा बोट का मज़ा भी ले लेते हैं और गंगा आरती का भी मज़ा ले लेते हैं। और आपके लिए गंगा आरती श्रद्धा से क्या मायने रखती है? अरे गंगा आरती मतलब कि माता का पूजा होता है जिसमें हम लोग को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। जो यात्री आते हैं गंगा आरती का से ही हम लोग को थोड़ा घाट भी घुमा देते हैं आरती भी बिठा के दिखा देते हैं।
The additional problem of security comes with the gathering of such a big crowd. Mishaps were relatively common during the Aarti a few years ago. But now, the floodlights and CCTVs that have been installed on the ghats keep on running even in a power failure with the help of local generators. The ghats come under the River Police Department, which makes sure that the ghats are patrolled by Havaldars at all times during the day. राहुल जी, यहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसा रहता है? एकदम टाइट रहता है, एकदम 24 घंटा टाइट रहता है, मॉर्निंग से लेंगे नाइट तक। कितने हवलदार होंगे अराउंड, आपको ये पता होगा? होते हैं, बस हर घाट के अलग अलग हवलदार लगे रहते हैं, ड्यूटी इनकी चेंज होने रहती है। अच्छा, कोई 4 होती है, कोई 6 होती है, मतलब इसी तरह घाट के होते हैं जी। देखिए, सिक्योरिटी तो हमेशा रहा, लेकिन आज 12-13 महीना साल भर से के आसपास हो रहा है, जब से विनय भैया ड्यूटी पे आए हैं, तो ये घाटों के ड्यूटी के प्रति में विशेष अक्सर रहते हैं। और जिस दिन ये प्रेजेंट रहते हैं, उस दिन क्या रहता है कि ऑटोमेटिक 2-4 संख्या में लोग और सिपाही और इंस्पेक्टर साहब हैं, ये सभी लोग आते हैं जी। और चोरी की वारदात बहुत कम हुई, घटनाएं बहुत कम होती हैं। Over the years, the locals seem to have developed a positive relationship with the police, and all activities run smoothly without any resistance. आपके लिए आरती क्या मायने रखती है? आरती देखिए, यहाँ पर तो बूंद बूंद में काशी विश्वनाथ है जी, मिट्टी में भी विश्वनाथ है जी। और जब आरती होती है तो थोड़ा एक अलग से जुनून रहता है। बहुत दूर दूर से पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं जी। और पूरे दुनिया के लोग में हमारे यूपी पुलिस को ड्यूटी करने का मौका मिलता है जी। एक तरह से मैं सारी दुनिया के पुलिस का मैं ड्यूटी कर लेता हूँ। कोई मान लीजिए एक देश में कोई अपना ड्यूटी करता होगा, एक प्रदेश में ड्यूटी करता होगा, यहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं जी। तो सबका सेवा करता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और हमारे पुलिस के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं और अच्छा लगता है।